these marks in this session only. Okay, so all these topics we have seen, you have already studied theoretically in class. Okay, so here we are going to see, we are just interested in tricks and tips of all the topics, so that we can cover or we can solve any problem based on this topic in CET examination quickly, okay, in less time. So our aim is this. So first of all, yeah, the matrices. The first topic is matrices. So we have seen in matrices, it's types, inverse of matrices, system, how to solve system, next Kelly Hamilton's theorem. All these topics we have seen in matrices. Next, statistic, in statistic, probability distribution function, binomial theorem, and all these things you have seen already. Okay, and next, in linear programming, we have seen different methods. Different methods. What are the methods? Graphical, simplex, etc. Okay, so these many marks we are going to cover. So first of all, main thing what we are going to do in today's lecture. Uh, so basically, we are going to look at all the tricks and solved problem. Okay, just ट्रिक देखे हम, ट्रिक नहीं देखेंगे तो on based on that tricks हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम कौन से? जो कि सीईटी एग्जाम में पूछे गए. ओके, so that will give you marks easily. Now सो आई लाइक टू टेल यू कि जो मैं आज मैं बताने वाली हूँ, यू हैव टू बी पेशेंट एंड वो आपको अच्छे से सुन के लेना है, अटेंटिव रहना है. एंड आई मेक श्योर, अगर मैं जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रिक्स एंड, so you have to pay attention for it, and I'll make sure by the end of this lecture everyone will get these many marks. Okay, so let's start with the first topic, matrices. Okay, so as I have told you, मैट्रिक्स कौन से टॉपिक आपने देखे हैं अब तक. मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ये ऐसा टॉपिक है that has many tricks so that every problem based on that matrix can be solved easily and get marks uh, easily and in less time. Okay, underline that word, in less time. So in CT exam you have to attempt this topic first and solve all the problems. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि इस मैट्रिक्स या मैट्रिसेस टॉपिक में कौन से कौन से टाइप पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सबको तो पता ही है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स. Okay, so let's look at the tricks of inverse matrix. So firstly, I'll read it for you. Inverse of matrix exists if and only if determinant is non-zero. तो इससे क्या implication होता है? मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट तभी होता है एंड प्रोवाइडेड द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑब्वियसली ये सबको पता है, उसकी ऑर्डर जो है वो n by n मतलब स्क्वायर होनी चाहिए, n by n मैट्रिक्स की ऑर्डर होनी चाहिए. सो देन एंड ओनली देन we will see whether inverse is exist or not. Okay, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. फाइन, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो क्या कहेंगे हम? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. फाइन, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी इसे हम अच्छी तरीके से कैसे यूज करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट, इफ a is invertible, then the solution of the system of equation ax is equal to b is given by x is equal to a inverse b. Hence, it is a unique solution. Okay, so what is ax is equal to b? Ax is equal to b is a system of equations. Okay, हमें इसमें क्या निकालना होता है? अननोन्स निकालने होते हैं. ओके, सो ये सिस्टम आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी आती है, तो हमें ये सिस्टम को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में. हम करते हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट, एंड इन दी एंड हम क्या निकालते हैं? ए इनवर्स निकालते हैं. ओके, तो ए इनवर्स इंटू बी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स आंसर मिल जाएगा. सो हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग इनवर्स ऑफ ए. So x is equal to a inverse of b.
दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा तो क्या होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो हमें इनवर्स निकाल के एक इनवर्स इनटू बी करना है। ओके, नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी देखने में आपको लग रहा होगा कि सिंपल है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, मिस कर जाते हैं, ये प्रॉपर्टी भूल जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन एग्जाम में आई एम 100% श्योर कि एक एग्जाम्पल इस पे होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है ए एंड बी, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या करना है आपको, यहाँ पे बी इनवर्स करना है इनटू ए इनवर्स करना है, ठीक है ना। सेकेंड, फोर्थ वन, इनवर्स ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Okay, inverse of upper triangular matrix is again upper triangular matrix. Similarly, for lower triangular and diagonal matrix, sorry. तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल हो तो उसका इनवर्स कैसे दिखेगा, इनवर्स भी वैसे ही दिखेगा जैसे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगा अगर वो अपर ट्रायंगुलर है, लोअर होगा अगर वो लोअर है, एंड डायगोनल होगा अगर वो डायगोनल है। ओके, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होगा, एक सपोज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया होगा और उसका इनवर्स पूछा होगा, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, अगर ऑप्शंस में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन को कट कर सकते हैं एंड वी कैन लुक एट द रिमेनिंग ऑप्शंस। ओके, तो हियर यू हैव टू रिमेंबर अपर ट्रायंगुलर का इनवर्स भी अपर ट्रायंगुलर ही होता है, एंड सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इससे एक वन मोर ट्रिक इज देयर, आई विल टेल यू लेटर ऑन, इससे ही जुड़ी हुई है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो ये आपको याद रखनी है पहले। नेक्स्ट, if diagonal entries of 3 by 3 upper triangular matrix and lower triangular matrix or diagonal matrix are ABC, then diagonal entries of its inverse is 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C. ओके, तो एग्जाम में होगा क्या, अगर आपको डायगोनल एंट्रीज, अगर आपको अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो हम चेक क्या करेंगे, ऑप्शंस भी दिए होंगे उस पर, तो आपको एक्चुअल इनवर्स ना निकालते हुए, इनवर्स आपको सबको पता है कैसे निकालना है, फिर भी अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है, थोड़ा सा टाइम लेता है वो इनवर्स निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, ये ट्रिक यूज करनी है क्या, कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स में क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज इसके रेसिप्रोकल होगी, जो कुछ भी डायगोनल एंट्रीज होगी इसमें इनवर्स में उसके रेसिप्रोकल्स होंगे। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज स्मॉल a, then determinant of its inverse is 1 upon a. Again, this is very important. Determinant of a दिया है आपको a, obviously it is non zero, अगर जीरो होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a is small a, then determinant of its inverse is 1 upon a, then its reciprocal. Fine. So next, if 3 points are given, then area of a triangle is equal to 1 upon 2 into determinant of the 3 by 3 matrices formed by these 3 points. अगर 3 पॉइंट आपको दिए हैं, 3 points, any 3 points makes a triangle, सबको पता है, तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 upon 2 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे 3 by 3 का यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स एंड उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 upon 2 इस डिटर्मिनेंट will gives you area of that triangle. ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, दैट will not make a triangle, that will be a line. ओके, तो एक लाइन पे वो तीनों पॉइंट, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका एरिया भी नहीं होगा, राइट, जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसका मैट्रिक्स
में मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही मिल जाएगा। तो हियर अगेन अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एंड विच इम्प्लाइज अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन ओनली व्हाट वी गेट, अगर कोई भी 3 पॉइंट है हमें क्या करना है, चेक नहीं करना है, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ उसका मैट्रिक्स बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो कोलिनियर, अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से। Right? Next. Now, so here, okay. यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स दिया है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2। जनरल मैट्रिक्स दिया है A B C D, इसके जनरल मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, उसकी डेफिनेशन ये तो सबको पता है। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये डायगोनल इज A into D minus B into C। Okay, so this is the formula for 2 by 2 determinant। नेक्स्ट सिमिलरली व्हाट अबाउट 3 by 3 डिटर्मिनेंट, ये भी सबको पता है। मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। A1 क्या होगा, A1 into this minus, that is B2 into C3 minus B3 minus B3 into C2 minus, हमेशा ये साइंस कैसे होंगे, प्लस माइनस प्लस। ओके, आपको दिख रहा है ये एरो में बता रही हूँ आपको, प्लस माइनस प्लस। ओके, ये प्लस हो जाएगा, इसका माइनर निकाल लिया, माइनस A2, इसका माइनर मतलब हमें क्या करना है, ये रो और ये कॉलम डिलीट करना है, बचे हुए एलिमेंट्स वो माइनर निकालेंगे, B1 C3 माइनस B3 C1। ओके, प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। नाउ नेक्स्ट, AB इज नॉट इक्वल टू BA। ओके, AB क्या है, AB इज अ प्रोडक्ट ऑफ A, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B। ओके, प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, A एंड B का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड B, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B are same, then only the product is possible। Okay, ये तो सबको पता है, that is the basic knowledge। Okay, then only then we can calculate AB। सिमिलरली BAB कैसे होगा, B into A कैसे एग्जिस्ट होगा, अगर number of columns in B is same as number of rows in B। Okay, then only the BA exist कर रहा है। In this case I'm saying AB and BA exist कर रहा है। Okay, doesn't matter, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे, बट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, ये इक्वल नहीं होते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, if A is n by n matrix and mod of A is equal to A, that is mod मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A is A। A क्या है, n by n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या दिया है, A दिया है। देन mod of K into A, क्या है इसका मतलब, mod of K into A, K is a sum scalar number, any number that we are going to multiply with A। ओके, और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये लिखेगा ऐसे। तो एक नंबर से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, ऑल एंट्री विल मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर A। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस के से मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा और फिर डिटर्मिनेंट इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। नो नो, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी दिया है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपके पास है, क्या होगा, k raised to n into A। व्हाट इज दैट n? n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो कोई भी स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो इस मैट्रिक्स को, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, k raised to n into दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोजिंग मैंने आपको 3 by 3 मैट्रिक्स दे दिया, A is a 3 by 3 मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, एंड उसका से डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको दे दिया 10, so 10 is the determinant of that matrix। Now take some k, say 2, k is equal to 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into A इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 2 raised to this k raised to n is 2 raised to 3 हो जाएगा। मतलब 3 क्यों, क्योंकि मैंने A 3 by 3 मैट्रिक्स दिया था, 2 raised to 3 into A। A क्या है, दैट इज 10। आई हैव गिवन यू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 10। समझ में आ गया ये कैसे प्रॉपर्टी यूज करनी है, वैल्यूज कैसे डाल के हमने डायरेक्टली आपको डिटर्मिनेंट बता दिया के ए का। फाइन, नाउ गो फॉर नेक्स्ट वन, A इनवर्स
ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो डेफिनेशन ही है ए इनवर्स निकालने की। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। सबको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सो दैट विल मेक द ए इनवर्स। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स। ओके, सब इस डेफिनेशन को किस तरीके से देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं। ओके, बट इन सीईटी they will not ask you directly question on this definition। ये उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे। तो इसके सभी वर्जन आपको पता होने चाहिए। भले आपको दिखेगा कि क्या क्या किया है इसमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये किया है एंड ऑल दिस थिंग्स, बट यू हैव टू पे अटेंशन कि ये वाले वर्जन्स ऑफ दिस डेफिनेशन आर आल्सो सेम इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या किया, बी में क्या किया है मैंने, हमने क्या किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स। फर्स्टली हमने क्या किया है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, एंड ए मॉड ऑफ ए दैट इज द नंबर, ऑब्वियसली दैट इज नंबर, वी हैव मल्टीप्लाइड ऑन दैट साइड। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा। तो आपको इससे आगे ये डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन करके याद रखनी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करना सूझेगा नहीं सूझ, मतलब आपको वहां पे याद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये करना यहाँ पे एज अ डेफिनेशन आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्टली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिर्फ मॉड ऑफ ए वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट इज ए इनवर्स। तो डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ next point, if A is upper or lower or diagonal matrix, then mod of A, that is determinant of A, is product of diagonal elements। Okay, that is very important thing। that is very important thing। क्या होगा, ऊपर अपर ट्रायंगल दिया है, कोई भी लोअर ट्रायंगल दिया है, या डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स दिया है। ओके, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको लुक एट दिस, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन कितने करने पड़े थे, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए कितनी कैलकुलेशन करने पड़े थे, बट by using this property you can calculate that determinant in 5 seconds only। How? What we are going to do, what we are supposed to do only, we just multiply the diagonal elements। Okay, that will gives you its determinant। Okay, तो अगर मैंने आपको 3/3 नहीं, 4/4 नहीं, मैंने अगर 100/100 भी मैट्रिक्स आपको दिया, दैट इज अपर ट्रायंगुलर से अपर ट्रायंगुलर, तो आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करोगे, देखते ही 100/100 का तो डिटरमिनेंट किसने निकाला नहीं होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। क्या होगा, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट diagonal elements, that will give you determinant of any size of matrix। Okay, similarly that is true for lower triangular matrix and diagonal matrix। Okay, ये आपको याद रखना है। Similarly, one step ahead, I'll tell you, if one entry on diagonal is 0, तो क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में एक कोई भी एंट्री 0 अगर है, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। सो विच इम्प्लाइज, अगर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स है, और कोई भी एंट्री अगर डायगोनल में 0 है, देन आई कैन डायरेक्टली से ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, देखा हमने कहाँ से कहाँ बिल्डअप किया, अपर ट्रायंगुलर से डिटर्मिनेंट से इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स और एंट्रीज ऑन डायगोनल एलिमेंट्स। फाइन, ये सब आपको क्लियर हो गया। आई 100% श्योर अबाउट दैट कि आपको क्वेश्चन जो आने वाला है सीईटी के लिए, वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। फाइन, तो नेक्स्ट we'll go for next slide। there is one problem। क्या है प्रॉब्लम, if matrix A is equal to one matrix is given such that 1 2 4 3 is given, x is equal to r।
then what is x? Now, there are some options are given. ऐसे ही options आंसर आपके सामने है. Look, आंसर आपके सामने है, आपको करेक्ट पिक करना है. ओके, दैट इज आवर x. यहाँ पे देखो क्या है, x इज इक्वल टू पूछा है, तो ax इज इक्वल टू I. दिस इज द सिस्टम. या ax इज इक्वल टू I, तो एक इक्वेशन है. तो हम x क्या है, x क्या होगा, ऑब्वियसली x इज a इनवर्स. a इनवर्स क्यों? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को विथ a इनवर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स I. a इनवर्स I इज नथिंग बट a इनवर्स. सो x इज a इनवर्स. सो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है. उन्होंने डायरेक्टली हमें पूछा नहीं है कि a इनवर्स निकालो. उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दिया है और x की वैल्यू पूछी है, तो हमारा काम क्या है, इनवर्स निकालना. ओके, तो इनवर्स तो सबको पता है. इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. बट वो डेफिनेशन यहाँ पे यूज करना आई डोंट थिंक इज अ गुड चॉइस, क्योंकि दैट विल टेक मोर टाइम. सो आई गिव यू वन ट्रिक टू सॉल्व the determinant of or sorry inverse of this 2/2 matrix. So देखिए, तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया है. a क्या है, तो गिवन x इज इक्वल टू I a इनवर्स, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स हमें निकालना है. So what is the trick? If a is equal to a b c d, this is the matrix. तो ये जनरल मैट्रिक्स है, तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा. तो हम पहले देखेंगे a इनवर्स कैसे निकाला है. 1/mod a. mod a क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो हमें ये मैट्रिक्स इनटू क्या लिखा है, दिस इज d इंटू ए. ये डायगोनल एंट्री जो है हमने क्या किया, एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया. d ऊपर लिखा, a नीचे, एंड c एंड d दैट मींस एज इट इज बट जस्ट विद द नेगेटिव साइन, माइनस c माइनस d. ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हमने निकालेंगे ad माइनस bc और cd इंटू मैट्रिक्स d इंटू माइनस b माइनस a, माइनस डी इंटू माइनस बी माइनस सी इंटू ए. सो ये वाला हम लॉजिक अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, तो इनवर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा. लुक एट दिस, ए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, 1 2 4 3. ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/, इसका डिटरमिनेंट है 3 माइनस 8 माइनस 5. तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू चेंज द एंट्रीज हियर. 3 एंड 1 डायगोनल इसको मैंने एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया. 3 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा, एंड ये विथ द नेगेटिव साइन. ओके, तो दिस इज नथिंग बट ए इनवर्स. तो ये हो गया आंसर. सो लेट्स लुक एट द प्रीवियस स्लाइड. तो इसका आंसर क्या है, 1/5 माइनस 3 to 4 माइनस. तो 1/5 माइनस 3 to 4 माइनस. तो दिस इज सी. The answer is C. ठीक, तो समझ में आ गया आपको. अगर A इनवर्स निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का, तो क्या करोगे आप, आई अगेन एक्सप्लेन. A इनवर्स अगर निकालना है, ए बी सी डी अगर मैट्रिक्स दिया है, तो A इनवर्स कैसे निकालोगे, 1/mod A इंटू एक मैट्रिक्स आपको लिखना है. वो मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, यूजिंग A. You just have to interchange the diagonal elements. D A किया है हमने, और B C वैसे लिखना है, सिर्फ with the negative sign. Okay, so A इनवर्स क्या होगा, 1/AD माइनस BC into D माइनस B माइनस C A. ओके, ये आपको याद रखना है. आप ये ट्रिक लिख के ले सकते हो अभी. तो propose next slide. Okay, yeah. So look at this. If A is equal to, again 2/2 matrix हमें दिया है, 2 2 minus 3 2 are the inputs for A, and B 0 minus 1 1 0. ओके, तो ये A B को दिया है. देन पूछा क्या है, B इनवर्स A इनवर्स उसका इनवर्स. तो करना क्या है, यहाँ पे किया क्या है, उन्होंने B इनवर्स निकाला है, A इनवर्स निकाला है, उसका प्रोडक्ट लिया है, अगेन इनवर्स निकाला. लेकिन वी हैव वन प्रॉपर्टी फॉर दैट. अगर प्रोडक्ट का अगर इनवर्स है तो कैसे होगा, हमने देखा था इससे पहले. बी इनवर्स क्या होता है, ए इंटू बी इनवर्स क्या होता है, दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है. तो हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं इनवर्स. तो यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. सो ए इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स.
तो ये टोटल क्या हो जाएगा, A इनवर्स इनवर्स इज नथिंग बट A, B इनवर्स इनवर्स इज नथिंग बट B, तो ये हो जाएगा A इंटू B, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू A इंटू B। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, इनवर्स कहीं भी नहीं निकालना है, सिर्फ आपको A इंटू बी प्रोडक्ट करके इसका आंसर निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे करोगे, एवरीवन नो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या करोगे, यहाँ पे देखो ए बी, जैसे मैंने बोला था वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इट कम्स ए इंटू बी। नाउ राइट डाउन ए एंड बी, यू जस्ट हैव टू टेक प्रोडक्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फ्रॉम मैट्रिक्स ए एंड फर्स्ट कॉलम फ्रॉम मैट्रिक्स बी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे element wise, so 2 into 0 plus 2 into 1, that is 2. Again first row, second column of B, first row of A, second column of B, so 2 into minus 1, that is minus 2, plus 2 into 0 is 0, so it comes minus 2, this entry. Okay, now for this entry हम क्या करेंगे, second row of A and first column of B, so it will come minus 3 into 0 is 0, minus 2 into 1 is 2, it will come 2. Next, second row of A and second column of B, so here it comes C. Okay, so that is very easy thing. मैट्रिसेस में आपको मार्क्स बहुत ही इजीली मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स है, जो मेथड हम थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं, इनवर्स निकालना, फिर उसका अगेन इनवर्स निकालना, कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करना है, राइट ना। So for invertible matrix, for invertible matrix A, if A into adjoint of A is equal to this matrix, so that this matrix, this is a diagonal matrix, 10 0 0 10, then they have asked you determinant of A. Okay, तो determinant of A क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A निकालना, मैट्रिक्स A निकाले, कैसे, क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, हमने यहाँ पे एक ट्रिक, एक प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस स्लाइड में हमने एक ट्रिक देखी, आपको याद होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डायरेक्टली, आपको मैंने जैसे बोला था वो एज अ ट्रिक हमें यूज करनी है डायरेक्टली। तो व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, जस्ट टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इसका आंसर देखने से पहले आपके पास आंसर उसका होना चाहिए, ट्राई टू सॉल्व, टेक 1 minute एंड एक्सप्लेन। तो मॉड ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, एनीबॉडी, आप चैट में लिख सकते हैं उसका आंसर। Okay, fine. So let's see. I hope सबको आ गया होगा इसका आंसर, पार्टिसिपेट। So A into adjoint of A is mod of A into R. Okay, mod of A into R. That is nothing but a matrix. तो हमें वहां से क्या निकालना है, mod of A निकालना है। ओके, इसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशन हमारे पास है A into adjoint of A क्या दिया है, mod of A into I दिया है, राइट। तो हमें निकालना है mod of A, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, that is given 10 0 0 10 is equal to mod of A into I. So from this it implies mod of A equals to 10. Mod of A is equal to,
ठीक है, समझ में आ गया? ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? क्या है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू i। ठीक है, ये कैसे? ये हमने देखा था a इनवर्स की डेफिनेशन से। ओके, a इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? a इनवर्स इज इक्वल टू, हियर इज सेट, हमने कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू r। ओके, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट दिस इंप्लीकेशन। बट वहां पे a इनवर्स दिया नहीं है, सो ये प्रॉपर्टीज आपको a इनवर्स से निकली है, ये याद आना लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, तो इम्पॉसिबल, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। सो आपको ये, जैसे आप ए इनवर्स की डेफिनेशन याद रखते हो, वैसे ही ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आर। ठीक है, आपको यहाँ पे तो लगेगा कि अरे ये तो इम्प्लीकेशन ही डायरेक्टली बताया है, डायरेक्टली पता है हमको यही है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद नहीं आएगा ये ए इनवर्स से आया। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज अ डेफिनेशन। तो ये मेक योर प्रैक्टिस। तो ये तीनों भी डेफिनेशन, जैसे ऐसे नहीं कि सेकंड डेफिनेशन होगी, यू हैव टू मेक श्योर कि ये तीनों भी डेफिनेशन आपको इंडिविजुअली याद है, इंडिविजुअली आपको याद है। यूनिवर्स तो याद ही होगा, ये थ्योरेटिकली हमने बहुत बार यूज किया है, यूनिवर्स निकाला है एडजॉइंट से। ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन सबको याद पता होती है, लेकिन सेकंड इंटीग्रेशन ये हम यूज टू नहीं होते इसे। तो a into adjoint of a mod of a into r, next sorry, adjoint of a is equal to mod of a into a inverse, right? So second and third, the end. You know the definition of it. Okay, let's go forward. Please answer me. Oh, next. If the inverse of matrix does not exist, that matrix is given to you, then the value of alpha. Okay, very interesting. 3 by 3 matrix दिया है और उन्होंने बोला है inverse does not exist, then find the value of alpha. So matrix का inverse कब नहीं exist करेगा? matrix का inverse exist कब नहीं करेगा? डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, जैसे हमने पहले देखा था, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट अगर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइज, इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन इम्प्लाइज, व्हाट इट इम्प्लाइज, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज जीरो, डायरेक्टली इट इम्प्लाइज। पढ़ने से आपको बिल्कुल नहीं समझेगा कि इसका ये ऐसे है कि डिटर्मिनेंट जीरो है, मतलब ये दिया नहीं है, समझेगा, लेकिन कब? आफ्टर just have to spend 10 seconds on it. You'll remind that properties of determinant and inverse. तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है इस 3 by 3 मैट्रिक्स का एंड इक्वल टू जीरो। तो लेट्स डू दैट। a is given, mod of a is equal to, जैसे हमने 3 by 3 डिटर्मिनेंट निकाला है, अल्फा इंटू 3 into 3, लाइक that minor alpha into like 2 by 2 minor 3 into 3 1 2 3, ये 9 minus 2, okay, minus 14, now this minor 2 into 3 minus 6 into 1, that is 6 minus, यहाँ पे हमेशा प्लस साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस साइन अटैच विद दैट वन, so it will come minus minus 1 4 minus 18, okay, so which implies is equals to alpha into that values we have written here, 9 minus 2 7, here it will become 0 and here minus minus 2, that is plus 14, so 7 of alpha plus 14, so mod of a क्या मिल गया हमें? 7 of alpha plus 14, okay, लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, व्हिच इंप्लाइज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। सो ये हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो है, ये वैल्यू जो आई है 7 अल्फा प्लस 14, इक्वेट करनी है जीरो को, तो इट विल बिकम अल्फा इज इक्वल टू -2। So look at the example once again. So here, where is that minus? Yeah, here d is -2। ये करेक्ट जो किया है उसको देखो मत, आई डोंट नो किसने किया है,
but don't consider this as the correct answer. We just have to solve. It is -2. We have solved it, so it comes -2, right? तो समझ में आ गया आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वेट करना है जीरो को। क्यों करना है इक्वेट करना जीरो को? क्योंकि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे बोला, राइट? तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द आंसर अननोन अल्फा। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा अगर होगा, कोई भी नंबर होगा, अल्फा की पोजीशन अगर कहीं पे भी होगी, यू हैव टू फाइंड। ओके, सो अल्फा बीटा कोई भी अननोन आपको किसी भी पोजीशन में होगा तो भी आपको ये फाइंड आउट करना आ जाएगा बाय यूजिंग दिस टिप। नेक्स्ट, next problem, if A is a matrix which is 3 by 3 matrix, square matrix is given to you, that indices 1 2 3 -1 1 2 and 1 2 4। okay, these indices are given। then क्या पूछा है उन्होंने, a square -5a into a inverse। okay, ये इक्वेशन हमें पूछा। so just look at it, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, दिखने से क्या लगेगा आपको, पहले आपको ब्रैकेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे, ए इनवर्स निकालोगे, 5 इंटू ए करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ए इनवर्स निकालोगे अगेन, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आंसर, बट ये बहुत ज्यादा टाइम आपका लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, दैट विल कम ऑब्वियसली इसके 2 and -1 that will add, so 2 and -1, so it will come 1, so 8, so we will go next slide, so a square minus 5 है a inverse, so a inverse से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिया है, a square into a inverse is equal to so minus 5a a inverse is equal to a minus 5। तो हमें यहाँ पे a square a inverse निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जस्ट बाय द मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका इंडाइसेस क्या हो जाएगा, 2 and 3 वो कैसे चेंज हो जाएगा, इट विल जस्ट कम a minus 5i। सो हमें क्या करेंगे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे सिर्फ मैट्रिक्स की। a मैट्रिक्स लिखो -5, i क्या होता है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जस्ट राइट द मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्ट इम्प्लाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी अन्य रो किसी भी कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, स्केलर अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट को वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 से मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ओके, तो क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन में एक पॉइंट बाय पॉइंट से सब्सट्रैक्ट करना है, 1 से -5, -4, 2 -0 that is 2, 3 -0 again 3, -1 -0 that is -1, 1 -5 is -4, 2 -0 again 2, 1 -5 sorry 1 -0 again 1, 2 -0 2 and 4 -5 -4। okay, so this is what the answer of given प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है सीईटी में, लुक एट दिस, कितना इजी है। जैसे मैंने बोला था, मैट्रिक्स के प्रॉब्लम जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए, क्या करना है एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए। इट विल नेवर टेक योर मोर देन 20 सेकेंड्स। ठीक, तो 20 सेकेंड से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, मैट्रिक्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेगा, तो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये किसी को पता नहीं होगा तो क्या करते हैं हम इस एग्जांपल में, ए स्क्वायर निकालते -5 करते, ए इनवर्स निकालते और मल्टीप्लाई करते, से भी आंसर आ जाता है, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। बट आपको अंदर मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली समझ में आ गया कि कितना रिड्यूस हो गया सिंपल इक्वेशन एंड से सॉल्व करना।
Next. Now, yeah, interesting. The inverse of matrix. Matrix is given. Can you tell me which type of matrix is it? लोअर ट्रायंगल ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 0 0 दिख रहे हैं डायगोनल के ऊपर एंट्रीज क्या है ऑल आर 0 एंट्रीज so it is a lower triangular matrix आपको पता ही है what is lower triangular upper triangular matrix and diagonal matrix these are the types of matrix आपको सबको पता है क्या होते हैं तो पहले आइडेंटिफाई करके लेना है यहाँ पे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मैंने जैसे बताया था प्रीवियसली क्या था हिंट इनवर्स ऑफ अपर लोअर और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपको यहाँ पे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड निकालने की कोई जरूरत नहीं है बाय यूजिंग जस्ट दैट प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन कैसे तो हम क्या करेंगे हम वन बाय वन आंसर रिमूव कर देंगे ठीक रिमूव कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ओके डोंट लुक एट दिस टिक जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था वो गलत होगी उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है क्या है प्रॉपर्टी डायगोनल एंट्रीज ऑफ 3 by 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स similarly lower and diagonal matrix are ABC. Then diagonal entries of its inverse is 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. Okay, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट तो एग्जैक्टली हमें इनवर्स नहीं मिलेगा बट हमें एग्जैक्टली आइडिया क्या मिल जाएगी इनवर्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगी वो कैसे लिखेंगे पूरा इनवर्स आप नहीं निकाल सकते उसको निकालने के लिए आपको एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे बट ओनली बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये प्रॉपर्टी याद रखना again go for that example लोअर ट्रायंगल है तो इसके इनवर्स में डायगोनल इंटरेस्ट क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओके नाउ लुक एट वन बाय वन लुक एट द आंसर वन बाय वन तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल 1 होना चाहिए लेकिन ये कुछ अलग तरीके से आपको आंसर दिया है ये आंसर किस तरीके से है बाय यूजिंग द डेफिनेशन mod of a 1 upon mod of a into adjoint of a ओके तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर्टी यूज करके वो फॉर्मूला यूज करके हम a इनवर्स निकालेंगे नो वी आर गोइंग टू यूज दैट इजी प्रॉपर्टी तो क्या है प्रॉपर्टी इनवर्स के डायगोनल एंट्रीज शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट रेसिप्रोकल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली हम देखेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 ओके तो वहाँ पे वो एंट्री ऑब्वियसली 1 होनी चाहिए सेकेंड डायगोनल एंट्री क्या है 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 होना चाहिए और यहाँ पे क्या है -1 तो अगेन इट शुड बी माइनस तो कौन से मैट्रिक्स में ये एंट्रीज हमें मिलती है तो लुक एट द फर्स्ट वन -1 दैट इज माइनस माइनस अगर ये -1/3 अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये हो जाएगा 1 ओके दैट इज करेक्ट सो ये हो सकता है नाउ लुक एट दिस सी लुक एट दिस बी माइनस अगेन ये 1 हो जाएगा ओके दिस इज अगेन करेक्ट सी क्या होगा ये -1 हो जाएगा तो इट इज नॉट करेक्ट तो हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे जिसे किसी ने भी लिखा है ये आंसर करेक्ट लिखा है आई डोंट नो दैट इज फर्स्ट वो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है जो हमने बाहर निकाला है दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल ओके ए एंड बी भी हो सकते हैं पता नहीं सी तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहा है हमारा नाउ गो फॉर डी इट अगेन कम्स 1 ओके तो पहले एंट्री से हमें तीन आंसर पता चल गए एक आंसर गलत है ये पता चल गया नाउ फॉर सेकेंड एंट्री दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3 नाउ लुक एट दिस ए ऑप्शन अगर मैंने -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा दैट इज -1/3 दैट इज अगेन नॉट करेक्ट तो ये क्या हो जाएगा ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ए एंड सी कट गए नेक्स्ट बी को देखो -1/3 इंटू -1 इज 1/3 ओके इट इज करेक्ट फाइन तो बी करेक्ट हो सकता है
नाउ गो फॉर डी। डी क्या होगा, -1/3 इंटू 1 दैट इज -1/3। ओके, देखो हमें थर्ड एलिमेंट चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें सेकेंड एंट्री से ही पता चल गया कि डी भी करेक्ट नहीं है, डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट इज डी। Okay, within 5 seconds you will be able to solve this example without solving I think repeating, without solving its actual inverse। जैसे हम निकालते हैं adjoint matrix, ओके, जो हम theoretically निकालते थे एग्जाम में, ये निकाला भी होगा 1/mod A into adjoint, राइट। तो समझ में आ गया क्या करना है। तो हमने देखा इसका रेसिप्रोकल चेक करना है और वही यहाँ पे चेक करना है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये -1/3 ये जो बाहर है -1/3 वो आपको याद रखना है, दैट इंक्लूड्स दैट मैट्रिक्स। ओके, ये पूरा मैट्रिक्स इंक्लूड करता है, ये इनवर्स रिप्रेजेंट करता है और नॉट ओनली दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, ये पूरा मैट्रिक्स कब होगा, ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, जब इस मल्टीप्लाई को, इस स्केलर को हम अंदर मल्टीप्लाई करके लेंगे, then only they will get one matrix as the inverse of that given matrix। Okay, so यहाँ पे 1 by 1 हम डायगोनल एंट्री चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इससे ज्यादा हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पर इनकरेक्ट, जिससे हम वो कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लोअर मैट्रिक्स दिया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, अगर सिमिलरली यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो क्या होता, अगर यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया होता तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाती, सेम हम देखते रेसिप्रोकल हो जाता उसका डायगोनल एलिमेंट्स इसके इनवर्स में। तो यही जैसे हमने यहाँ पे 1 by 1 चेक किया है, वैसे ही हम चेक कर, ठीक है। सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स अगर दिया होता, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, अपर ट्रायंगुलर पता है, लोअर ट्रायंगुलर पता है, डायगोनल भी पता है। डायगोनल क्या होता है, जस्ट नॉन जीरो एंट्रीज ऑन डायगोनल एलिमेंट्स, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री ऑन डायगोनल एलिमेंट दैट इज, एंड बाकी के सारे एंट्री जीरो होता है। उसमें भी सेम प्रॉपर्टी है होगी, तो उसका इनवर्स क्या होगा, डायगोनल एंट्री में रेसिप्रोकल नॉन डायगोनल, राइट। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से आपको पता भी होनी चाहिए और अप्लाई भी करना है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ पता होने से नहीं, यहाँ पे एक लॉजिक भी हमने यूज किया है, जो कि ये इनवर्स जो है ये पूरा का पूरा इनवर्स है -1/3, हमको उसको भूलना नहीं, ओके, उसको भूलना नहीं, पैनिक नहीं होना है। अगर आपको लगेगा कि अरे मैच नहीं हो रही है, दैट -1/3 इंक्लूड्स दैट इनवर्स, तो हम करेंगे सिंप्लीफाई करके लेना है एंड 1 by 1 चेक करना है कौन सा नंबर गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और ओके। सो हियर so here we are finished our first topic, matrices, that was your 6 marks। okay, तो जो सारे हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे, आपको एग्जाम में जाने से पहले यू मेक श्योर कि आपको ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता है, एंड यू कैन सॉल्व, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिक्स, राइट। आई मेक श्योर दैट कि इससे आई गारंटी यू कि आपको इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि आई एम मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि ये सारे मैंने प्रॉपर्टीज इंक्लूड किए हैं इस स्लाइड में, इस पीपीटी में। आपको सिर्फ वही करके जाना है। तो एग्जाम पास आ गई है, आपके पास नहीं टाइम नहीं है, अगर किसी ने देखा भी नहीं है मैट्रिक्स टॉपिक नहीं देखा है, लग रहा है कि अरे नहीं होगा, आप रिविजन भी करेंगे, फिर भी आप क्या करोगे, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, रिकॉल करोगे एंड अप्लाई करके देखोगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके, जैसे हमने अभी देखा, जैसे मैंने बोला था कि ये पूरी पढ़ाई आपकी मैट्रिसेस की 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। मैंने अभी दिखा रहा है, उससे हाफ टाइम ही आपको लगने वाला है पूरा रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो डोंट गो विदाउट लुकिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज, हाउ टू अप्लाई, फाइन। So let's start with the next topic, probability and statistics। First of all, we are going to see probability क्या है। प्रोबेबिलिटी में भी जो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सब सीईटी के एग्जाम पेपर में से हमने लिए हैं, और जो रिपीटेडली पूछे, तो ये एग्जाम अभी भी रिपीट होने वाला है, ओके।
सेम एग्जाम्पल नहीं हुआ रिपीट, लेकिन ये कंसेप्ट पे रिपीट होने वाला है 100%। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज ये जो हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा टॉपिक तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली कवर नहीं कर सकते। सो कंसिडरिंग योर नॉलेज अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक जो कुछ भी अपनी क्लास में पढ़ा है एंड ऑल दिस थिंग, सिर्फ हमने क्या किया है, मेन टॉपिक्स चूज किए हैं जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड है, मतलब सिंपल चीज़ें हम कैसे देखेंगे कैसे यूज करेंगे। राइट, तो हियर फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी ए कॉमा पी, हियर what n denotes number of trials, and p what p denotes probability of success in each trial. Okay, so what is q? q is 1 minus q. Okay, तो एग्जाम्पल में आपको क्या दिया जाएगा, n दिया जाएगा, p दिया जाएगा। ओके, q आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट p, क्योंकि क्या क्या है q 1 minus q। ओके, तो probability of success and you can say probability of failure, q is probability of failure, you can say that। ठीक है, तो 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसी भी चीज की, सक्सेस किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है, एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हमें यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है, तो ऑब्वियसली फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस दैट सक्सेस, दैट इज 1 माइनस पी। अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम थिंग। Now, using these things and Q, so number of R successive in trials. Okay, this thing is important क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसे पूछेंगे number of R success, तो success and in trials पूछेंगे, तो क्या होगा, which equals to NCR P raised to R into P raised to N minus R. This is the formula for these things. आपको अगर R success पूछा है कोई भी N trials में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला पता है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज एनसीआर and p raised to r, q raised to n minus r, these are things p are given, p will be given, q will be given, all these things will be given, you just have to know this formula ncr, p raised to r, q raised to n minus r। ऊपरली हमें सब दिया है, n is given, p is given, q is given and r जो है वो भी गिवन होगा इन n ट्रायल्स। इस नंबर के लिए पूछा जाएगा आपको ये करना है। तो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। Probability that a person, probability that a person will develop immunity after vaccination is 0.4। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, अभी भी मुझे मतलब ये सिचुएशन बाहर चल रही है उसे रिलेवेंट क्वेश्चन है। क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज 0.8। if 8 people are given the vaccine, if 8 people are given the vaccine, then probability that all develop immunity is, okay, तो यहाँ पे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। इम्प्लीकेशंस क्या है, हमें क्या है, मुझे पता है वो फॉर्मूला यूज करना है। उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज है, एन है, पी है, क्यू है एंड आर है। ओके, दीज 4 थिंग्स आर given in the formula, okay, and similarly that 4 things are given in the examples also, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एन लेना है, आर लेना है, पी लेना है और क्यू लेना है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, वैक्सीन दैट डेवलप्स इम्यूनिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पीपल है, इफ 8 पीपल्स आर गिवन द वैक्सीन, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 8, तो n क्या है, n इज इक्वल टू 8। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दी है, यू कंसीडर दैट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज यू कंसीडर दैट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब यहाँ पे p गिवन है।
तो क्या है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 0.8। फाइन, समझ में आ गया। तो क्यू आप अकॉर्डिंगली निकालोगे, क्यू क्या होगा, क्यू का फॉर्मूला पता है 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.8। तो क्यू क्या होगा 0.2। तो सी हमें यहाँ पे n मिल गया, n इज 8, p is given 0.8 and q is also given indirectly, that is 0.2. Now what is r? So look at the question. In the end, if 8 people are given the vaccine, then probability that all develop immunity. तो सारे के सारे पर्सन को इम्यूनिटी डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी पूछी। तो यहाँ पे सक्सेस क्या होना, क्या पूछा है, पूरा पूरा का पूरा प्लान ये जो है वो सक्सेस हुआ, राइट। मतलब 8 पीपल को वैक्सीन दिया है, 8 पीपल डेवलप इम्यूनिटी, मतलब यहाँ पे आर क्या होगा, आर भी 8 ही होगा। एन भी 8 है लेकिन आर भी 8 ही होगा, क्योंकि पूरे के पूरे लोगों का डेवलप होना चाहिए इम्यूनिटी, ऐसे उन्होंने पूछा, इसके लिए प्रॉपर्टी पूछी। तो लास्ट वन आर भी हमको मिल गया। तो हमें इंडियन क्या करना है, ये सारे नंबर जो है वो प्रीवियस फॉर्मूले में डालना है और आंसर कैलकुलेट करना है, राइट। So here, जैसे हमने लिखा था n is equal to 8, p is equal to 0.8, q is equal to 1 minus p, that is 0.2, r is equal to 8. Hence, probability of that is x is equal to r is given by, ये x unknown है, ये r can be changed, okay। तो यहाँ पे 8 चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, फिर हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, probability for x is equal to r is given by, क्या होगी probability, p x is equal to r equals to NCR p raised to r q raised to n minus r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, x is equal to 8, 8 c 8, 0.8 raised to 8, that is the value of p and r, and again q की वैल्यू 0.2 raised to n minus r is, n क्या है 8 है, r क्या है 8 है, मतलब 8 minus 8 is 0, ये 0.0 raised to 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 c 8, that is 1, एंड यहाँ पे 0.8 रेस टू 8 एज इट इज, यहाँ पे ये 0.2 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो अगेन इट कम्स कम 1, अगेन इट कम्स 1, तो टोटल आंसर इज 0.8 रेस टू 8। तो हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज 0.8 रेस टू 8। फाइन, समझ में आ गया, हमने वो डेफिनेशन कैसे यूज की समझ में आ गया। आपको क्या करना है, डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन से आपको एन पी क्यू आर निकालना है, जो कि आपके सामने है, आपके एग्जाम्पल में सामने है, उसे वैल्यू पुट करनी है और निकालना है। एक बात याद रखनी है, जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, कंसीडर दैट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मैंने ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, same first line will be same, probability that a person will develop immunity after vaccination is 0.8, that is given. If 8 people are given the vaccine, then what is the probability that no one will develop immunity? तो क्या होगा, no one develop immunity। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जाम्पल को, तो होगा क्या चेंज होगा, p चेंज होगा क्या, p will not change, क्योंकि p का मैंने चेंज प्रोबेबिलिटी वैसे की वैसी रखी है 0.8, p will be 0.8। 8 people are given vaccine, okay fine, तो 8 हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट इज n इक्वल टू 8, राइट, वो भी मैंने वैसे ही रखा। तो p से हम q भी निकाल सकते हैं, दैट इज 0.2। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल इम्यून इज, नो वन इम्यून, तो यहाँ पे r क्या होगा, r इज 0, समझ में आ रहा है। तो r कैन बी वैलिड, तो r अलग अलग अगर पूछा होगा तो भी आप बता सकते हैं बाय यूजिंग द सेम डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पे r मेरा क्या होगा, यहाँ पे कंसिडर 0, ये 0 हो जाएगा, 8 चूज 0 एंड 0.8 रेस टू अगेन 8 एंड 0.8 रेस टू 0 होगा, क्योंकि r इज 0, एंड 0.2 रेस टू n माइनस r इज what is 8 है, फाइन। तो n की क्योंकि क्या है 8 है, माइनस 0 इज 2, फाइन। तो ये क्या होगा 8 c 0, दैट इज 1, ओके। ये
बात याद रखो, 8C8 and 8C0 always 1. NCN and NC0 is always 1. And here 0.8 raised to 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0.2 raised to 8 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.8 raised to 2. तो ए आंसर हो जाता अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन विल डेवलप इम्यूनिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर नो वन टू डेवलप इम्यूनिटी, ऐसे अगर पूछा होता तो आंसर होगा 0.2 raised to 8. समझ में आ गया ना? We go for the next. Now, here, probability of guessing correctly. Uh, probability of guessing correctly at least 7 out of 10 answers in a true or false test. Now, similar probability का क्वेश्चन है, हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. क्या है फॉर्मूला? NCR n रेस टू p रेस टू r and q रेस टू n माइनस r. ओके, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो इसी क्वेश्चन से हम n r p q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज यहाँ पे आंसर टोटल कितने मिले हमें? 10 मिले. ओके, सो n क्या होगा? 10 होगा. नाउ r क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट एटलीस्ट 7. यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली 7 नहीं पूछा है, एटलीस्ट 7. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी r के लिए? एटलीस्ट 7 मतलब 7 आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा उसमें. यस, 7 विल इंक्लूड. अगेन 7 से ज्यादा लेकिन 10 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने 10 ही किए हैं. 7, 8, 9, 10, दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर r, राइट? क्योंकि ये एटलीस्ट वर्ड वहां पे आ गया. एग्जैक्टली अगर पूछा होता ओनली 7 तो r एग्जैक्टली 7 हो जाता, तो सिर्फ 7. बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस किया r की वैल्यू. नाउ हमें रह क्या गया? p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी. ओके, तो इस चीज में उन्होंने पूछा है ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा है. ओके, तो मुझे बताओ कोई भी अगर चीज है ट्रू और फॉल्स, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ट्रू हो जाएगा? एक आंसर मैंने बताया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ट्रू आ जाएगा? एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी. और इसकी आंसर फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, राइट? तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी दोनों के लिए. तो कंसीडर सक्सेस प्रोबेबिलिटी p इज ट्रू. ट्रू एज अ सक्सेस हम क्योंकि यहाँ पे पूछा है करेक्टली आंसर, राइट? तो कंसीडर ट्रू एज अ सक्सेस. So probability of success is p is equal to 1 by 2 and q is equal to, again 1 minus 1 by 2 is nothing but 1 by 2, right? So हमें p and q निकाल पता है हमें. r क्या है? 7, 8, 9, जैसे हमने बोला था, क्योंकि एटलीस्ट 7 पूछा है इसलिए हमने सारे के सारे नंबर्स लेने पड़े. Hence probability of at least 7 success is equal to p of into bracket x is greater than equal to 7. तो सारे x के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 7 से ग्रेटर देन इक्वल टू है. क्या है वो? 7, 8, 9, 10. ओके, ये इसे लिखने का तरीका है. तो ये क्या होगा? एमएस आपको सीईटी में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं. आपको बैक ऑफ द माइंड ये सब पता होना चाहिए. सिर्फ कैलकुलेट करेंगे आप, डायरेक्टली कैलकुलेट आंसर करोगे. लेकिन यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि वो आंसर कैलकुलेट कैसे किया. ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू. तो ये प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी. किसके लिए? 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10. ओके, सो हियर p of x is equal to 7 plus probability of x is equal to 8 plus probability of x is equal to 9 plus probability of x is equal to 10. तो इनडायरेक्टली हमें सारे के सारे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऐड करेंगे. तो पुट x is equal to 7 in that formula. So consider that as r. मैंने यहाँ पे x लिखा है, you can say x और r. nothing change. यहाँ पे r अगर मैंने लिखा होता तो clearly समझ में आ जाता. Consider it as r. Okay? क्योंकि x भी लिखते हैं किसी प्रॉब्लम में, that will ask you x. So sometimes they will ask you r. Okay? That doesn't matter. So write down the property. Write down the formula. 10. Consider r as a 7. So 10 is
r that is 7, which is p 1 by 2 raised to 7 and 1 by 2 raised to 3. ये हो गया फॉर्मूला इसके लिए. नेक्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 10 cubes 8 1 by 2 raised to 8 1 by 2 raised to plus 10 cubes 9 1 by 2 raised to 9 1 by 2 raised to 1 plus 10 cubes 10 1 by 2 raised to 10 and 1 by 2 raised to 0. ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. नाउ हम कैलकुलेट करेंगे दैट. लुक एट दिस. हर एक टर्म में 1 by 2 raised to 7 and 1 by 2 raised to 3. मतलब ये एडिशन क्या हो जाएगी? सफिक्स से, मतलब ये 1 by 2 सेम इंडाइसेस के एडिशन क्या होगी? 10 हो जाएगी. 7 plus 3 is 10. तो सारे के सारे स्टेप में देखो 1 by 2 raised to 10 है, तो हम क्या करेंगे? वो बाहर निकालेंगे कॉमन. बचेगा क्या? 10 cubes 7, that is 10c7 plus 10c8 plus 10c9 plus 10c10. Okay, now here we are use the formula. क्या है formula? n factorial upon r factorial into n minus r factorial. यहाँ पे directly मैंने कैलकुलेट करके लिखा है. आपको पता है ये formula क्या है? तो 120, इसका आंसर 45, इसका आंसर 10, इसका आंसर. ये क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करने के बाद 11 by 64. Okay, 11 by 64. यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन 11 by 64. तो ये आंसर समझ में आ गया. तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या निकालना है? ए निकालना है, पी निकालना है, आर निकालना है, क्यू. इसको किसी को पुट करना है और वैल्यू निकालना है. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ statistic. For discrete random variable distribution function f is given by. Okay, ये सिर्फ आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं. कुछ अगर किसी को कुछ पता नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं. 2 marks you are going to get this from only these two formulas. Okay, ये याद रखो. FR is equal to probability of x is less than equal to r and FR is equal to 1 minus probability of x is greater than r. This is nothing but that. Okay, ये क्या है? F क्या है? This is the distribution function. Okay, so look at the example directly. तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने यूज किया. तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. इफ द PDF of ARV X is given as XI, टेबल आपके सामने दिया है XI, then f of 0 पूछा है. f of 0 क्या है? f of 0 is that probability function, distribution function, and probability of each xi is given. Here probability is given for all the xi. now यहाँ पे पूछा है then f of 0 क्या है? तो हमें बेसिकली निकालना क्या होता है? इस टेबल से हम f of r की वैल्यू, f of x की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, पूरा का पूरा टेबल कैलकुलेट करते हैं. तो नो नीड टू डू दैट. यू जस्ट हैव टू पुट 0 इन प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे पुट करो. फर्स्टली r में 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? f of 0 इज इक्वल टू p of x इज लेस देन इक्वल टू 0. ओके, और p of f of 0 is equal to 1 minus p of x is greater than 0. Now look at this. First वाला ऑप्शन यहाँ पे p of x is less than equal to 0. Okay, so look at this, whether there is that option or not. No. So look at the second option. F of 0 is equal to 1 minus p of x is greater than r. मतलब x is greater than 0. ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा. 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको दिया क्या है? सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हैं. x1 एक्सरसाइज दिए हैं -2 -1 0 1 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है -2 0.2 0.3 एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आपको फंक्शन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है. ये दोनों भी फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए अच्छे से. आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो विद इन 5 सेकंड. समझ में आ गया? तो टेबल देखने के बाद डरना नहीं है. इट विल नॉट टेक योर मच टाइम. यू जस्ट हैव टू पुट दैट फॉर्मूला एंड दैट. ओके, हमने क्या किया? सिर्फ r की वैल्यू पुट की. r इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, सिमिलरली
Next, for the following distribution, uh, function f of x of arb x, रैंडम वेरिएबल एक्स ऐसे होता है, रैंडम वेरिएबल एक्स होता है। सो यहाँ पे उन्होंने एक्स की वैल्यू दी थी, जैसे ऊपर दिया है एक्स है, दैट इज नथिंग बट एक्स 1 2 3 4 5 6, these are different experiments they have taken. Now they haven't give you probability, but they have give you f of x. Okay, तो कैसे निकालना है, तो वो प्रोबेबिलिटी से निकालना है। तो अब इससे प्रोबेबिलिटी आप भी निकाल सकते हो, वाइस वर्सा। अगर पी दिया है तो एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है तो आप पी निकाल सकते हैं। ओके, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स एंड दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5। ओके, इसके लिए पूछा, मतलब इन बिटवीन 3 to 5, तो 3 कंसीडर करना है क्या हमें, नो, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स। तो 4 से एंड 5 से, ये दोनों एंट्रीज मुझे इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपने ये नया टेबल क्रिएट किया है। क्या है ये टेबल, 1 2 3 4 5, ये दो एंट्रीज सेम ही है, 2 कॉलम्स एफ ऑफ एक्स, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में थी। हमने सिर्फ ये नया वाला रो ऐड किया है, वो क्या है, पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो कैसे निकालते हो, that is nothing but this is p of x is 0.2 is nothing but probability of x, 0.70 is nothing but probability of 2, 0.11 is probability of 3, this is probability of 4 and 5 and 6। okay, ये कैसे निकाला, ये f of x से निकाला। f of x क्या होती है, this is the cumulative। हमने f of x कैसे निकालते हैं हम, अगर p of x दिया है तो f of x कैसे निकालोगे, 0.2, तो सेकेंड के लिए क्या होगा, you just have to add these things, you'll get this 0.37, and again adding this thing you'll get 0.62, again adding these two things you'll get 0.85 and 1। okay, तो इनवर्सली हम p of x कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो हम प्रोबेबिलिटी का कॉलम निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, दिस इज द क्यूमुलेटिव, यहाँ पे क्यूमुलेटिव दिया है फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन मतलब ये लिख के एडिशन करके लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस 0.37 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.2, तो ये आ जाएगा 0.17, दैट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ओके, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.37 फ्रॉम 0.48, so it will give you 0.11, right? Similarly, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कैसे निकालोगे, 0.62 से सब्सट्रैक्ट करोगे प्रीवियस एंट्री, दैट विल गिव यू 0.14। सिमिलरली 5 के लिए क्या करोगे, 0.85 से 0.62 माइनस करोगे, इट विल गिव यू 0.23। सिमिलरली 6 के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, 1 से सब्सट्रैक्ट करोगे 0.85, इट विल गिव यू 0.15। दिस इज नथिंग बट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फॉर ईच एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 के लिए। नाउ क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन बिटवीन 3 to 5 एक्सक्लूडिंग 3। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 5 निकालनी है, मतलब जस्ट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड ऐड करना है। इस टेबल से हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड 5 पता है, दैट इज 0.14 एंड 0.23। यू जस्ट हैव टू add these two numbers, you'll get total probability in between 3 and 5। okay, this is nothing but 0.37, इसलिए आंसर यूज करेक्ट 0.37। ओके, सिमिलर प्रॉब्लम अगर मैंने पूछा होता what is the probability of x strictly less than 5, तो क्या होता है, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा होता प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, तो क्या करते हम, तो हम क्या करते, ये सारी 4 की 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी तो निकाल के रखी है, तो यू जस्ट हैव टू ऐड दिस। 5 इंक्लूड होगा क्या उसमें, नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन 5 बोला था, इसलिए सिर्फ यही एंट्री ऐड हो जाएगी, यू विल गेट द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, ऐसे हर एक कॉम्बिनेशन में अगर कुछ कोई भी कॉम्बिनेशन में पूछा तो आपको समझ में आना चाहिए, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको एफ ऑफ एक्स पता है, अगर दिया है तो आप पी एफ एक्स निकाल सकते हैं, पी ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स भी आप निकाल सकते हैं। फाइन, समझ में आ गया, तो दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट एलपीटी। ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग,
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये क्या है एलपीपी? सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 x and dot dot xn which satisfy the condition of given linear programming problem is called a solution of that problem. First, what is a linear programming problem? यहाँ पे ये देखिए सॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया है। क्या है होता है प्रॉब्लम? एक फंक्शन दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे और उसको हमें सॉल्व करना है, राइट? तो सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आइदर सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसको, जस्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट? These three types of solution will be there for the given LPP problem, LPP, right? Linear programming problem. तो देखिएगा कैसे, I'll just directly show you the problem. Look at this question. The first one. Z is equal to x1 plus x2. This is the objective function. Z is equal to x1 plus x2. Subjective. X1 plus x2 is strictly less than equal to 10, comma, minus 2x1 plus 3x2 is less than equal to 50, comma, x1 is less than equal to 6, comma, x1, comma, x2 is greater than equal to 0. So these are in this there is objective function and subject to के बाद में जो कुछ भी लिखा है that is constant. We call it as a constant. Okay. तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होगा, okay, अंडर दिस कंस्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, देर आर, जैसे मैंने बोला था मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, वो यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सबको पता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, आइदर ओके, तो सॉल्यूशन क्या है? A state of values of decision variables x1, x2, xn which satisfy the condition of given linear problem is called a solution. Okay, so that is a solution. We are not interested in that क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है। We are interested in feasible solution and optimal solution. Okay, वो feasible solution कब होगा? और solution which satisfies the given constraint is called a feasible solution. तो जैसे हमने प्रॉब्लम देखा था, उस प्रॉब्लम में जो कुछ भी सॉल्यूशन आ जाएगा दैट शुड बी सैटिस्फाई ओनली गिवन कंस्ट्रेंट। तो उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन को फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कब बोलेंगे? देन द सॉल्यूशन शुड सैटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन as well as that constant. Okay, and that should be gives you maximum or minimum value. Okay, maximum or minimum value आपको मिलनी चाहिए, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ तो फिजिबल रीजन क्या होगा? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्टेंट ऑल द एलपीपी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। मतलब जो एग्जांपल दिया होगा आपके सामने, कंस्टेंट को लेके हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में जो शेडेड रीजन होगा बाय अप्लाइंग दैट ऑल द कंस्टेंट, शेडेड रीजन होगा, दैट इज नथिंग बट द फिजिबल रीजन। ओके, तो आपका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसमें ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट? Next. Okay, directly we are will go to theorems only. That is without proof. Just have to use that theorem by solve the problem based on LPP. The first theorem क्या है? The set of all feasible solution of LPP is a convex. Okay? The set of all feasible solution of LPP is convex. इसका मतलब क्या है? जो हम डायग्राम निकालते हैं, ओके, जो ग्राफिकल मेथड से हम जो डायग्राम निकालते हैं, वो जो शेडेड रीजन आपको मिलता है दैट इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन पता है, अगर स्ट्रेट लाइन कोई भी पॉइंट से ड्रॉ करें तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन सेट में होती है, राइट? नथिंग बट मतलब बाहर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इनडायरेक्ट, राइट? नेक्स्ट थ्योरम 2, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी अटेन्स इट्स ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू अगर अटेंड करता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ऑप्टिमम वैल्यू होगी at least at one of the vertices of convex polygon। तो जो हमने कॉन्वेक्स सेट ड्रॉ किया होता है, जो शेडेड रीजन होते हैं, तो उसके एंड पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसमें एटलीस्ट वन पॉइंट जो होता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अटेंड करता है। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ड्रॉ किया है शेडेड रीजन ड्रॉ किया है,
तो हमें चेक करते टाइम क्या करना है, सिर्फ एंड पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स आपको चेक करने हैं, सॉल्यूशन लिखने नहीं। ओके, इतना हमारा काम है। तो बाकी के कोई पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं होती है। अगर एग्जिस्ट करता है तो एंड पॉइंट करता ही है, इसका मतलब ये है, राइट। तो डायरेक्टली हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। The shaded part of given figure indicates the feasible region. यहाँ पे एक डायग्राम आपको दी है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं दिया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम के कंस्टेंट फाइंड आउट करना है। ओके, देन द कंस्टेंट्स, आपको इसके कंस्टेंट फाइंड आउट करना है। फाइन, नाउ लुक एट द डायग्राम फर्स्ट। सी पॉइंट दिया है, बी दिया है, ओ ओरिजिन ए, यहाँ पे सी बी ओ ए, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं एंड दिस इज द शेडेड रीजन। एरो implies that region is under these 4 points। ओके, ये बाहर नहीं जाएगा, इसे ये कवर्ड एरिया है, इससे हमें कंस्टेंट निकालना है ना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक एट दिस कंस्टेंट ए बी सी डी, लुक एट दिस ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, 1 by 1 हम ऑप्शन कैंसिल करते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, नाउ बाय लुकिंग एट जस्ट द डायग्राम हमें क्या पता चलता है, लुक एट दिस लाइन। This line is x is equal to 5. Okay, this line is x is equal to 5. That parallel to y axis, this line is x is equal to 5. Okay, तो इसके कौन से साइड का रीजन हमें पता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड का रीजन पता है। मतलब x should be, what are the points should, point should be x is less than equal to 5. Okay, now ये कंस्टेंट हम चेक करेंगे, x is less than equal to 5। तो कहाँ पे है, लुक एट द ऑप्शन ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे है क्या, नो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लुक एट द बी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, इट इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी हो सकता है। सी देखो, लेस देन इक्वल टू 5, यस, ऑप्शन सी भी हो सकता है। एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यस, डी भी हो सकता है। तो हमारे पास एक लाइन से 3 आंसर मिल गए, मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ 3 आंसर्स हमें मिल गए। नाउ go for this parallel line with x axis, that is y is equal to 3। तो कौन सा रीजन है, ये वाला शेड, नीचे वाला रीजन। सो y should be less than equal to 3। तो देखेंगे हमारे पास b c d ये ऑप्शन थे, y is less than equal to 3, it is there, so b can be the answer। c के लिए देखेंगे, y is greater than 3, no, here y should be less than 3, so c कैंसिल हो गया, बचा d। look at d ऑप्शन, yes, y is less than equal to 3। ओके फाइन, तो हमें ये दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे सेम है, सो बी कैन बी द आंसर, अगेन डी कैन बी द आंसर। फाइन, नाउ लुक एट दिस लाइन। दिस लाइन क्या है, लुक एट दिस 0 0 एंड 3 3, दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू y। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 0 3 3 है, तो ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू y। सो x इज इक्वल टू y क्या होगा, हम y को इस साइड लेके जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन। बट है, लेकिन वो रीजन, शेडेड रीजन कौन सा दिया है, ये वाला दिया है, राइट। तो हम कैसे पता चलेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पुट करके देखेंगे। कौन सा पॉइंट पुट करके देखेंगे, जो कुछ भी शेडेड रीजन है। तो हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स है, देखो ये इजी वन है, क्योंकि एक तो ऑप्शन 0 ही है, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई टेक दिस पॉइंट 0 5 0 एंड पुट इन दैट इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में पुट करके देखेंगे, तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, चेक करेंगे। ओके, तो अगर या 5 है, मतलब दैट शुड बी द कंडीशन। सो x माइनस वाई, x क्या है 5 है, माइनस क्या है 0, तो x माइनस 0 इज 5, दैट इज ऑलवेज, that is obviously greater than equal to 0, और greater, strictly greater than 0। बट यहाँ पे कंस्टेंट जो है वो हमेशा हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही लेंगे, क्योंकि ये 0 भी है वहाँ पे। तो
ये पॉसिबिलिटी होगी क्या उसमें x माइनस वाई इज लेस देन 0? नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन x माइनस वाई, फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, ये तो पॉजिटिव सेटिस्फाई हो गया। तो ये तीनों कंडीशन कहाँ से देखी हमने? स्ट्रेट लाइन से देखे सिर्फ, और वी आर सी ऑप्शन बी करेक्ट कैसे आ गया? हमने रिमूव किए ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। समझ में आ गया आपको? आपको चेक करना है लाइन के इक्वेशन, एंड लाइन के इक्वेशंस में पॉइंट डाल के देखना है ये x माइनस वाई कहाँ से आ गया। अगर आपको लग रहा है तो ये इस लाइन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई है ना, सबको पता है 0 0 3 3, these are the points that are passing through that two points। ये क्या होगी? लाइन x इज इक्वल टू वाई होगी। तो ये पॉइंट जो है वो रीजन में है, ये पॉइंट कौन सा वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये हम चेक करेंगे। ये पॉइंट बी वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा था, that is x minus y is greater than equal to 0, that's why it comes answer is B. That way its answer is B. Now, yeah, the objective function z is equal to x1 plus x2 subject to x1 plus x2 is less than equal to 10, comma minus 2x1 plus 3x2 is less than equal to 15, x1 is less than equal to 6, and comma x1 comma x2 is greater than equal to 0, has maximum value dash of the feasible region। एक बात आप याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इस एलपीपी को, ये पूरा क्या होता है? एलपीपी होता है ये पूरा प्रॉब्लम, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रक्ट ये पूरा मिला के एलपीपी होता है। इसको तीनों ही चीज पॉसिबिलिटी होगी। क्या हो गया? आइदर नो सॉल्यूशन, आइदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों होंगे? से सपोजिंग इफ यू आर सेइंग टू सॉल्यूशंस आर देयर, टू सॉल्यूशन अगर है तो क्या होगा? जैसे हमने प्रीवियसली थ्योरम देखा था, दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन उस कॉन्वेक्स सेक में आ जाएगी, उस सेक में आ जाएगी, रीजन शेडेड रीजन में आ जाएगी। इसीलिए वो सारे के सारे पॉइंट्स ऑन दैट रीजन, ऑन दैट लाइन itself will give you solution। तो कितने पॉइंट्स होंगे एक लाइन में? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। सो सॉल्यूशन टू द एलपीपी will be always either no solution, unique solution, or infinite, 0 1 और infinite। फाइन, ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज आपके पास होगी। नाउ look at the options at only one point, at only 2 points, at every point of segment just line joining two points, at every point of the line joining 2 points। Okay, look at the B option, at only 2 points। ऐसे पॉसिबल होगा क्या? at only 2 points, जैसे मैंने बोला था no, क्योंकि 2 points अगर एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, तो जॉइनिंग दैट 2 points एक लाइन बनने लगी, वो लाइन पे भी जो कुछ भी पॉइंट होंगे दैट विल गिव यू सॉल्यूशन। ओके, तो ये 2 पॉइंट वाला आंसर नहीं होगा, ये कट हो जाएगा बी। तो ए सी डी ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ अगर वन मोर हिंट इज देयर, इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्या करना पड़ेगा आपको? ये सारा ड्रॉ करना पड़ेगा। x प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इज इक्वल टू 10 के लिए x1 x2 की वैल्यूज निकालो, पुट करो, ड्रॉ करो लाइन। सिमिलरली ये वाली लाइन ड्रॉ करो, अगेन x1 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये वाली लाइन ड्रॉ करो, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कुछ भी डायग्राम होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ओके, एंड आपको क्या चेक करना है? एंड पॉइंट्स चेक करना है सॉल्यूशन में, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ये करने से वन मोर हिंट इज देयर, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लुक एट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ओके, so z is equal to x1 plus x2। so here ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड x1 plus x2 is less than equal to 10। कोई भी कांस्टेंट में सेम फंक्शन अगर रिपीट हो जाएगा, तो हमेशा आंसर कितने होंगे?
इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कैसे? क्योंकि कंस्टेंट का फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम है इसलिए। ओके, आपके लिए जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो कि दैट एवरी पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट, डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कुछ तो सिमिलरिटीज दिख रही है। यस, दे आर सेइंग हियर पॉइंट सेगमेंट जॉइनिंग 2 लाइंस, मतलब उस 2 पॉइंट के बीच में का सेगमेंट है वो कंसीडर करना है। लेकिन डी ऑप्शन में देखो, एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन कितने भी बड़ी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, तो कोई भी पॉइंट अगर उस शेडेड रीजन के बाहर भी होगा तो भी वो सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये है क्या? ये मतलब इज इट करेक्ट कि if my point is outside that shaded region, whether it is solution? No, it is not solution. The solution will be exist in between that shaded region only. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट लाइन, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एंड ओनली वन भी नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, दैट इज joining point going to go. Okay, so this was my last slide. So thank you, I have completed. तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। Thank you so much for such a great session and very informative session on the mathematics. Thank you. So now I request all the participants or Chetan Ahir sir to unmute all the participants. If suppose in case of any queries, they can raise their queries to the our today's speaker Madhuri Shinde ma'am. Chetan Ahir sir, please. In chat box, as such, there is no any question related to the mathematics or related to the today's topic, that is matrices. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful session. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So, as a session coordinator of this today's function, I, Professor Nitin Bone, take the opportunity to propose the vote of thanks.